Preposition. Preposition is what? Preposition are a sentence which result is coming either true or false is known as a preposition. Okay? You know that prepositions are two types in Boolean algebra: simple preposition and compound preposition. Okay, we will talk about simple preposition. What is a simple preposition? Simple prepositions are independent. Simple prepositions are those prepositions that give us information about a single fact. Single fact means what? Single fact means, so just like a simple sentence. Suppose, fast food trend to be unhealthy. Okay, so their statement is coming either true or false. Yes, fast food trend is not to be unhealthy. Yeah, fast food is to be unhealthy. Same fashion, it is raining today. A condition is either coming true. It is not raining today. It is raining today. Same fashion, mango is sweet. Either condition is coming, mango is sweet or not sweet. So this type of situation is known as preposition. But where do you go? This is not a preposition because we are asking a question. Another thing, if we are saying that how long will you wait here, this is also not a simple proposition. So this type of sentence, those who has a single statement but answer is either coming in true false is known as simple proposition. Okay, dear students, again we are going to be talking about compound preposition. Compound preposition use the logical operations with the help of conjunction, disjunction, implications and implication and by conditions also. Their symbol is and, or, if, then. Either or, neither nor type question sentence are when coming, this type of sentence are compound because basically they are compounding two sentences, okay, with the help of conjunction, disjunction and negation, implications. So how they will be? So see the example. A is equal to Jamshedpur is a steel city. B, it is in Jharkhand. Now, you are going to be compound this sentence, then what will be the output? Jamshedpur is a steel city and it is in Jharkhand. So, we are connecting two sentences in one statement. So, at the time we are using conjunction, disjunctions, implications and by condition. Here students, we will learn about more in compound statement. तो यहाँ पे compound statement are formed from a simple sentence and express relationship among the constructive sentence. There are 5 type way to compound the sentence. Number 1 is a negation, conjunction. Number 3 is disjunction, implications and by conditions. And next type we will learn how can we use 5 type of compound sentence. Okay. Negations of a simple sentence is formatted by using a symbol not with the variable of sentence. Why we are saying not variable is the sentence? मतलब क्या हुआ यहाँ पर जब हम negation की बात करते हैं ऐसी situation में what will happen, अगर conditions 0 है तो
उसकी अपोजिट कंडीशंस 1 होगी, और अगर कंडीशन 1 है तो 0 होगी इन द केस ऑफ निगेशन। मीन्स एक ही सेंटेंस का पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म जो होता है दैट इज कॉल्ड निगेशन। ओके, तो यहाँ पर बात हो रही है, सपोज यहाँ पर कहा गया मैंगो इज नॉट अ स्वीट, पहले वैल्यू क्या है, 0 वैल्यू, मैंगो इज नॉट स्वीट, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मैंगो इज स्वीट। इसी तरह से अगर मैंगो इज अ स्वीट तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मैंगो इज नॉट स्वीट। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर वेरिएबल्स में सिचुएशन फॉल्स है तो उसकी अपोजिट सिचुएशन ट्रू ही होगी, और that situation is known as a negation of any sentence। तो कोई भी सेंटेंस की बात करेंगे, कंप्यूटर इज फन एंड कंप्यूटर इज नॉट फन, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि घर में एक ही स्विच होता है जो ऑन एंड ऑफ का करता है। अगर लाइट ऑन है तो उसकी अपोजिट लाइट ऑफ होगी, और अगर लाइट ऑफ है तो उसकी अपोजिट लाइट ऑन होगी। The conjunction. In the form of conjunction, we have to understand what is a conjunction part. It is a term used to combine two simple propositions. Its result is true when the both statements are true. Otherwise, result will be false. Okay. This type of situation जहाँ पे दोनों ही रिजल्ट ट्रू होंगे तभी कंडीशंस ट्रू मानी जाएगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। तो आप कैसे इसको समझें, सब इसको आइए टेबल से समझते हैं। टेबल समझने की बात जब है तो इसको सिंपल समझ लीजिए। जब टेबल फॉर्म की जाती है कोई भी 2 वेरिएबल्स की, जब 1 वेरिएबल की टेबल फॉर्म होती है तो हमेशा एक्चुअली जब बाइनरी टेबल की बात करते हैं वो रेज टू द पावर 2 होती है, ठीक है, रेज टू द पावर 2, मतलब जितने वेरिएबल होते हैं उसका रेज टू द पावर। तो यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक है p, राम इज थिन, और दूसरा वेरिएबल q, ही कैन क्लाइंब द ट्री। तो अब अगर हमें टेबल फॉर्म होनी है तो क्या होगा, उसका रेज टू द पावर। तो क्या हो गया, p का जो हम रेज टू द पावर जस्ट p एंड q यानी 2 वेरिएबल का रेज टू द पावर करते हैं, पावर 2 करते हैं, तो हमारे पास आती है वैल्यू 4। तब क्या हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में जब भी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहां पर हमारे पास होगी 0 0 एंड 1 1 फर्स्ट कॉलम में, ये बाय डिफॉल्ट, ओके, और सेकेंड कॉलम में होगी 0 1 एंड 0 1, ओके। अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन आपको समझ में आएगी, मतलब इसको समझने के लिए इसको ऐसे बनाते हैं। अच्छा, अब बात आई कि अब 0 दोनों कॉलम को जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, 0 p में है और q में 0 है, इसका मतलब दोनों सिचुएशन क्या है, फॉल्स, तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब आइए सेकंड कॉलम में देखते हैं, p तो फॉल्स है बट q ट्रू है, लेकिन दोनों ही कंडीशंस क्या है, ट्रू नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भी कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी। सेम फैशन अगर थर्ड कॉलम में देखेंगे तो पहली कंडीशन तो ट्रू है यानी p ट्रू है बट q फॉल्स है, q 0 है, ऐसी सिचुएशन में कंडीशन अगेन फॉल्स हो जाएगी। और लास्ट कंडीशन अगर आप देखें दोनों में 1 1 वैल्यू है, इट्स मीन दोनों कंडीशन ट्रू है और हमारा लॉजिक ट्रू होगा। तो आइए हम स्टेटमेंट टेबल से समझते हैं। स्टेटमेंट टेबल्स में आपसे कहा जा रहा है कि राम इज नॉट थिन, ही कैन नॉट क्लाइंब द ट्री। तो राम इज नॉट थिन है, ऑल्सो ही कैन नॉट बी क्लाइंब द ट्री, यानी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। राम इज नॉट अ थिन, वो थिन तो नहीं है, मतलब फैटी है, बट ही कैन नॉट क्लाइंब द ट्री, तो वो भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है राम इज थिन, ही कैन नॉट क्लाइंब द ट्री। राम थिन है लेकिन वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, तो भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब राम इज थिन एंड ही कैन क्लाइंब द ट्री,
दोनों सिचुएशन ट्रू है तो उसको ट्रू मान लिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या लॉजिक लगता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 वैल्यू क्या हो रही है, 0। इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई बाई 1 वैल्यू क्या हो रही है, 0। सेम अगर नेक्स्ट में देखें 1 मल्टीप्लाई बाई 0 वैल्यू क्या हो रही है, 0। 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो वैल्यू क्या हो जा रही है, 1। तो इसके अंदर जो भी फॉर्मूला लग रहा है वो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लग रहा है। ओके, आप देख भी सकते हैं जहां पर सिंबल बताया गया है वहां पे P डॉट Q दिया हुआ है, कंजक्शन का साइन दिया हुआ है। ऐसे सिंबल्स कहीं पर भी आते हैं उसे हम क्या मान के चलते हैं, कंजक्शन। और कंजक्शन का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, और मल्टीप्लिकेशन में जहां वैल्यू ट्रू होगी उसी को वैल्यू ट्रू मानी जाएगी। ओके, जब हम डिडक्शन की बात करते हैं तो आइए समझते हैं कि डिडक्शन होता क्या है। इट इज अ टर्म यूज्ड टू कंबाइन सिंपल प्रपोजिशन। इट रिजल्ट इज ट्रू इफ आइदर और बोथ, इफ आइदर और बोथ ऑफ द सेंटेंस आर ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट विल बी फॉल्स। मीन्स कहने का है कि एक भी सिचुएशन अगर ट्रू है तो कंडीशन ट्रू होगी, वरना कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स हो जाएगी। ओके, तो आप देखिए इसमें भी देखकर, इसमें अगर हम जाके सिचुएशन देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 0 और 0 है तो 0 प्लस 0 आपका वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह से 0 एंड 1 मतलब पहली कंडीशन फॉल्स है पर दूसरी कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। सेकंड में देखिए, थर्ड में देखिए आके, पहली कंडीशन ट्रू है बट सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो हमारी कंडीशन ट्रू ही मानी जाएगी। और अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो कंडीशन हमारी ट्रू होगी। ये रूल्स कहलाता है डिडक्शन, मतलब any situation is true then condition will be true. Okay, dear children, what implications case deal? It is capable to compound the sentence by using consecutive if then situation. Okay, if then situations, when it comes, then this situation is known as implications. Okay, so for example, P, it is a holiday, I will go to movie. Now, when we combine the sentence by using implications, and condition will be what? If it is holiday, then I will go to movie. Means first conditions पे second conditions depend करती है। अगर पहली कंडीशंस ट्रू है तो दूसरी कंडीशन फॉलो करेगी, अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। मीन्स इट इज अ हॉलीडे, इफ इट इज अ हॉलीडे देन आई विल गो टू मूवी। और अगर सिचुएशन निगेशन हो जाए, इफ इट इज नॉट हॉलीडे देन आई विल नॉट गो टू मूवी। ओके, तो सिचुएशन अकॉर्डिंग टू चेंज हो जाती है इफ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग। इसका अपना फॉर्मूला है। यहाँ पर जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पी एरो क्यू होती है, ये यानी कि आपका इम्प्लीकेशंस कंडीशंस। ऐसी सिचुएशंस में हमारा जो फॉर्मूला होता है पी निगेशन प्लस क्यू। अगर पी निगेशन प्लस क्यू है तो आपकी कंडीशन इम्प्लीकेशंस की अप्लाई होगी, मतलब आपके पी एरो क्यू का फॉर्मूला पी निगेशन प्लस क्यू होगा। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला हैज टू गिवन बाय द बूलियन अलजेब्रा। अच्छा, अब बात आती है कैसे क्या करेंगे। हम यहाँ पर हमें पता है 2 वेरिएबल्स हमारे हैं तो हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स मतलब 2 रेज टू द पावर 2 यानी कि 4 के यानी कि 4 आपके आउटपुट होंगे।
2 इनपुट है तो 4 आउटपुट होगा। तो पहला कॉम्बिनेशन आपका क्या बन रहा है, पहला कॉम्बिनेशन बन रहा है P0 Q0, दूसरा कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है P0 एंड Q1, तीसरा कॉम्बिनेशन बन रहा है P1 एंड Q0 और चौथा कॉम्बिनेशन बन रहा है 1 1। इसको याद कर लीजिए, यूनिवर्सली जब भी टेबल हम बनाएंगे तो पहले कॉलम में 2 0 2 1 जब हमारे 2 आउटपुट की टेबल होगी, और दूसरे कॉलम में 0 1 0 1 बनाएंगे तो आप देखेंगे आपके चारों कॉम्बिनेशन यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। अच्छा, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, P निगेशन प्लस Q, यानी कि P का निगेशन वैल्यू को ही हम प्लस Q करेंगे तो हमें इम्प्लीकेशन वैल्यू पता चल जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, P का निगेशन निकाल लेंगे। तो निगेशन क्या होता है, वेरिएबल्स की जो वैल्यू है उसका अपोजिट। अभी आपने निगेशन केस में पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा, 0, अगर जहां P 0 है तो निगेशन के केस में P 1 हो जाएगा, और जहां P 1 है निगेशन के केस में 0 हो जाएगा। तो आप खुद देखिए, पहले कॉलम में आपके 2 0 2 1, फिर Q के केस में 0 1 0 1। जब हम निगेशन में आ रहे हैं तो जो पहले कॉलम में 2 0 थे, इसलिए निगेशन के पहले 2 कॉलम में 1 हो गए, और पहले वाले कॉलम में आपके 1 1 वैल्यू है तो निगेशन के केस में वैल्यू 0 0 हो जाएगी। P की सिचुएशन में आप ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, P निगेशन प्लस Q, मतलब हम तीसरे कॉलम और दूसरे कॉलम की वैल्यू को ऐड करेंगे तो सिचुएशन हमारी इम्प्लीकेशंस की लगेगी। तो आपका क्या हो रहा है, आप चेक कीजिए 0 एंड 1, तो अगर यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो 0 एंड 1 1, ठीक है। अब आपका 1 एंड 1 यानी दोनों कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू हो जाएंगी। यहाँ पर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। यहाँ पर पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो भी 1 हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा था कि जहाँ पर डिडक्शंस का सिंबल लगता है यानी प्लस का सिंबल लगता है, वहां पर कोई भी एक सिचुएशन अगर ट्रू है तो कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स मानी जाएगी। ओके, सो आई होप दैट you are able to understand the logic of deduction. I hope so. About biconditions, biconditions या इक्विवेलेंट, अभी हम लोगों ने इम्प्लीकेशंस पढ़ा था, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट, मतलब दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। पहली कंडीशन ट्रू है या दूसरी कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, पहली कंडीशन फॉल्स हो सकती है पर दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तो उसको हम कहते हैं बाई कंडीशन। A bicondition is a combination of an implications and reverse implications, मतलब implications and its reverse, देन दोनों की तरफ। आप अगर इसके सिंबल्स को चेक करेंगे तो आप खुद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे P की तरफ भी एरो बना है और Q की तरफ एरो बना हुआ है, मतलब दोनों ही सिचुएशन एक दूसरे को इम्प्लीकेट कर रही है। अब यहाँ पर कहा जाए इट इज अ हॉलीडे, आई विल गो टू मूवी, तो आइदर इट इज अ हॉलीडे आई विल गो द मूवी, आइदर इट इज अ हॉलीडे आई विल नॉट गो टू द, है ना। अगर हॉलीडे है तो मूवी देखने जाएंगे, है ना, हॉलीडे है तो क्या हुआ, मूवी देखने नहीं जाएंगे। ऐसी जब सिचुएशंस क्रिएट होती है तो वो क्या कहलाती है, इम्प्लीकेशंस एंड रिवर्स इम्प्लीकेशंस, और दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज नोन एज अ बाई कंडीशन, ठीक है। तो ऐसे में इसका इक्वेशन यानी जो एल्जेब्रिक फॉर्मूला होगा वो होगा P डॉट Q प्लस P निगेशन डॉट Q निगेशन। अगर सिचुएशन है तो वो कहलाएगी बाई कंडीशन। ओके, यहाँ पर भी हम वैसे ही निकालेंगे, हम P की और Q की टेबल बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं तो अगेन 4 कॉम्बिनेशंस होंगे। तो आपका क्या हो रहा है, 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1,
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कंडीशन में ऑलरेडी कहा गया है P निगेशन एंड Q निगेशन, मतलब दोनों का ही निगेशन वाली सिचुएशन को भी मल्टीप्लाई होना है। तो आप क्या करेंगे, P का भी निगेशन निकालेंगे और Q का भी निगेशन। P का निगेशन में भी आपने देखा पहले कॉम्बिनेशन में 0 है तो निगेशन अपोजिट 1 1 हो जाएगा, अगर 1 1 है तो अपोजिट 0 हो जाएगा। सेम फैशन Q में भी होगा, अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं पहले कॉलम में P की ओरिजिनल वैल्यू है और तीसरे कॉलम में P की निगेशन वैल्यू है। इधर दूसरे कॉलम में Q की ओरिजिनल वैल्यू है और चौथे कॉलम में Q की निगेशन वैल्यू है, यानी रिवर्स वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चलिए अब निकालेंगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन। P डॉट Q भी निकालेंगे, P निगेशन डॉट Q निकालेंगे। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, अगर 0 0 है तो वैल्यू 0 आएगी, 0 1 है तो वैल्यू 0 आएगी, 1 0 है तो भी वैल्यू 0 आएगी, और अगर 1 1 है तो वैल्यू हमारी 1 होगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या हो रहा है। पहले केस में अगर आप निगेशन P निगेशन एंड Q निगेशन देख रहे हैं तो पहले कॉलम में 1 1 है तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या होगी, 1। सेम फैशन आप दूसरे कॉलम में देखते हैं तो 1 एंड 0 है तो वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 एंड 1 है तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 0 के केस में तो वैल्यू 0 रहेगी। यही चीज आपके P डॉट Q में भी होता है, पहले कॉलम में 0 0 वैल्यू है तो P डॉट Q में भी वैल्यू 0 मल्टीप्लिकेशन होगी, 0 एंड 1 है तो P डॉट Q में भी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 0 एंड 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है। सेम फैशन अगर 1 एंड 0 है तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 1 एंड 1 के केस में वैल्यू 1 होगी। ठीक, अब क्या होना है, P निगेशन डॉट Q निगेशन प्लस P एंड Q, मतलब हमें क्या करना है, दो कॉम्बिनेशन यानी P निगेशन डॉट Q और P डॉट Q को जोड़ना है। तो जब हम जोड़ेंगे तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि ऐड का जहाँ साइन होता है यानी प्लस का साइन होता है, तो ऐसे में कंडीशन को कहते हैं और, मतलब किसी में भी अगर वैल्यू 1 है तो उसको वैल्यू 1 मान ली जाती है। तो आप देखिए 0 एंड 1 है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 0 वैल्यू में 0 0 हो जाएगी, और 0 एंड 1 है तो भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपका कॉम्बिनेशन यानी कि इम्प्लीकेशंस का क्या बनेगा, 1 0 0 1, ऐसी सिचुएशन आपकी इम्प्लीकेशन कहलाती है। फॉर्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक में फॉर्मूले गिवन है, अगर आपको फॉर्मूले क्लियर है तो आप कभी भी बुलियन अलजेब्रा में गलती नहीं करोगे। सिंबल क्लियर है तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। ओके।